Good afternoon, everyone. So again, we have gathered together because of one reason, as we are all teachers. So we take classes time to time. It- Whenever we are in class, so we have to think about our students. So for these students' improvement, we have to take some measures, which is very important. So without avoiding that, we cannot move on. So for our better future, we have to take care of that. So for that reason, so we have added a program which is called Role of Guidance and Counseling in School. So under the guidance of CBSE and with the help of management and principal sirs, so today there is another versatile speaker. So as we know, so he is none other than Mr. Praveen Kumar. So I would like to call Mr. Praveen sir to come and enlighten us our knowledge. Please sir. Today, on this in-house study program, I have been honored by a school to give a speech and to share some important points with each and everyone, those who are present here. This is a role of guidance and counseling in school. Topic I have been given, role of guidance and counseling in school. So here is the topic on the board, and I would like to say, I would like to start from here that one most important factor is that counseling. Very confidently, I will say you, best counselor in the world, according to Hindu epics, it was Lord Krishna, who counseled Arjun in the Kurukshetra, and he won the war of virtue. So he was the best counselor. Now, accordingly, we may be the best counselor and guide for our children in our respective job as a teacher. Here, we have some introduction about the guidelines for counseling. There is the vital aspects in higher education, but we cannot apply everything for the low aged children also. Same situation cannot be imposed on both type of students, but of course guidance is needed for the higher education students as well as the junior, sub-junior students also, because they also want guidance how to write, how to read. So guidance is needed everywhere. In higher education, it is needed for their career. In lower classes, it is needed to spend his life carefully. So now individual, any help which is rendered to anyone individually, these all are in terms of counseling, which is being rendered to anyone by a person. Education without guidance and counseling is not complete. Of course, it is right. Each and everyone we are observing in our life, we need some guidance from someone to good
to achieve best and best in our life. Because without a good guideliner, we are unable to proceed ourselves. So same, there is the points, some points is given. Guide means to show the path, in which to indicate. There are the points to point out the way by which, according to our own, according to our own, एक क्लास के बाद में वहाँ डिवाइड कर दिया जाता है कि किस तरफ में कौन से बच्चे की रुचि है. आफ्टर आस्किंग देयर चॉइस, इट इज बीइंग observed that this boy will take the science stream, he will take the art stream, and he will go in another region. So we are not giving this type of education, but as much as concerned up to after class 10, we can give them a better career guidance, because in class 10 especially or 12, students are asking how will they proceed their life, in what will be our best way in which we can proceed ourselves. So they are asking. So career is also starting from there. Career guideline is starting from there, and we can do. Every teacher, as I told you earlier also, and you may be understanding that, I'm not going to say more than that, because everyone knows that very well. We all are a guide. We are not the teacher, as much as we know. Many classes we have come to know that we are only facilitator. We are only guide for our children with the best way, with the best solution. In my view, this is, and you also may be knowing that same thing. Now to help, we have to help to establish an effective relationship between the total educational experiences and his personal need and potentialities. I don't want to say no one is doing, but I think it is better to know the potential of the students. We have to guide them. I think it is better, because many a time some teachers, as I am facing the problem, some teachers, they used to understand everyone with equal mental height. They have equal potential to accept the knowledge which is being delivered by the teacher. But sometimes we have to observe their potentiality as well as their willingness also. We have to face, there is the teachers are indulged with the students or a little bit quarreling type situation. So we have to avoid them as a good counselor and understand their problems, their potentiality, their mental height, and accordingly we have to treat with them. This is, I think it is better. If it is being done, then it will be better for as a guide in the school. There is continuous and pervasive process as a favorable direction influence upon. अब सवाल है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है. आप सब इसको समझ रहे हैं, हम केवल मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं. आप सबको ये इलस्ट्रेट, ये पॉइंट्स जितने भी हैं या इसलिए लाए गए हैं कि आप इसको एक बार फिर से अपने दिमाग में और थोड़ा सा रिन्यू करें और इस हिसाब से अपने आप को वहाँ आगे प्रोसीड करें. तो ये है एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर. अब सवाल होता है कि हमारा सोशल बिहेवियर एज ए गाइड, वी आर सपोज टू बी इन सच ए सिचुएशन इन विच वी हैव टू think not only for educational point of view, we have to think about our social behavior also. We have to academic competence, we have not to provide academic competence level
शैक्षणिक प्रतियोगिता स्थापित करने की बात नहीं आती है बच्चों के बीच में। हम बच्चों के बीच में जरा उनके व्यक्तित्व के विकास की भी बात करें, उनके सामाजिक बिहेवियर की भी बात करें, गाइडेंस वहाँ पे ये भी दिया जा सकता है। क्योंकि आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 750 ग्राम के बारे में पूछा जाता है, एक पाव में कितने ग्राम होते हैं, तो हमें अंदाजा है कि बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहरी सीबीएसई के खास उनके बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो कहने का सेंस है कि पता नहीं कौन सा बच्चा अपने किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएगा आगे चल के, ये असंभव है। इसलिए संभव है कि हम लोग उसको कुछ न कुछ उसके सोशल बिहेवियर के बारे में भी क्लासेस में कुछ न कुछ जानकारी देते रहे जहाँ तक संभव हो सकता है। हमें जो लगता है इस गाइडलाइंस के आधार पे तो ऐसा होना चाहिए। पर्सनल इफेक्टिवनेस इन एवरीडे अफेयर्स। अब हमारे जो रोजमर्रा का जो वर्क है, हम लोग कभी कभी इस टीचिंग प्रोफेशन में संडे आने के बाद हम लोग सोचते हैं हाँ आज संडे आएगा, 7-6 दिन बाद फिर से संडे आएगा, काफी खुश हो जाते हैं। बच्चे भी इसी तरह से काफी खुश होते हैं कि आज बंद होगा, काफी खुश। फिर भी ये जो पर्सनल इफेक्टिवनेस है एवरीडे लाइफ के, हम लोग फिर अंतिम पीरियड में वो अंतिम पीरियड में भी फर्स्ट पीरियड जैसा एनर्जेटिक होना तो कुछ हद तक सही नहीं है। हो सकता है कि लोग ना भी रहे, लेकिन अक्सर क्लासेस में अक्सर सवाल उठते रहते हैं, सर 2-3-4 पीरियड पहला वाला होता तो इसमें हम ज़्यादा बच्चों का ज़्यादा केयर कर सकते हैं, ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं, बाद में थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। हो सकता है, ये संभव है। सब आदमी पूरे दिन एनर्जेटिक नहीं रह पाता है, ये बात सच है। लेकिन एक और गलती है कि हम लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम लोग अपने कुछ दायित्व भी हम लोगों के भी है जिसमें हम लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब व्यवस्था कुछ ऐसा जिसमें कि हम एनर्जेटिक रह सके अंत तक, शायद ये होना चाहिए अपने बारे में भी सोच के। खैर, अब लोग समझते हैं कि मन से ऐसा हो सकता है, होगा, अपना इंडिविजुअल भी। खैर, अब ये essentially an educative process and the outcome of which are mental and educational preparedness। ये हम जो इंडिविजुअल या फिर कॉमन जो आउटकम हमारे बीच से निकलेगा किसी पर्टिकुलर खास के लिए या किसी कॉमन किसी के लिए जब निकलेगा, तो वो एंड द आउटकम ऑफ विच आर मेंटल एंड एजुकेशनल प्रिपेयर्डनेस, ये जो है हमारा उस तरह का होना चाहिए जिसमें कि वो मानसिक तौर पे बच्चे और शैक्षणिक तौर पे दोनों ही अवस्थाओं में बच्चे आगे बढ़ने के लिए विकसित हो रहे होते हो। तो एक गुड ट्रेनर या गाइडलाइनर्स उनका ये रोल होना ही चाहिए। गाइडेंस इज ए स्पेशल ट्रेनिंग in which an individual discovers his natural endowments so that he makes a living to his own best advantage and that of society। I mean to say, career का गाइडेंस हो या लाइफ का गाइडेंस जो हम कर रहे होते हैं लोगों के बीच, बच्चों के बीच, तो वहाँ पे ये उनके बेस्ट होना चाहिए। जो उनके अचीव कर सकते हो जिंदगी में, उसके प्रति हम बेस्ट जितना उनको गाइड कर सकते हो। जो अपने जिंदगी में वो आगे बढ़े, अच्छा करे, तो उस जो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करे, तो ऐसी व्यवस्थाएं करते हुए हम बच्चे को आगे बढ़ाने का कर सकते हैं। Guidance is a systematic, organized phase of educational process which help to improve their power, gain richer personal experiences while making his own unique contribution to our democratic society। अब यहाँ पे गाइडेंस एक व्यापक मीनिंग रखता है। हम तो ये बड़े लोगों के
बीच का ही बात हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा हम अपने स्कूल के बच्चों के बीच भी इसी चीज को क्रियान्वित कर सकते हैं, इसी चीज को आगे ला सकते हैं, जिसमें है कि गाइडेंस इज अ सिस्टमेटिक। वो अब सवाल उठता है कि हम भी थोड़े से अनसिस्टमेटिक हो जाते हैं अक्सर, कभी कभी, मतलब कि जो काम अभी कर रहा है तो काम उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, भूल जाते हैं, ऐसा होता रहता है। तो जो सिस्टमेटिक वर्क होना चाहिए था वो तो हमें बच्चों के बीच ले जाने के लिए खुद भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना ही चाहिए, और शायद समय से काम पूरा करने के बाद सब सिस्टमेटिक ही होगा। तो ऑर्गेनाइज्ड फेज ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, और जैसा कि होता है हर PT1 के बाद असेसमेंट 1 के बाद असेसमेंट 2 होता है, ऐसा तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे जो है एजुकेशन का, वो चैप्टर बाय चैप्टर ऐसा ये भी बच्चों के बीच जो जा रहा होता है वो यहाँ टू इम्प्रूव देयर पावर्स, जिससे कि उन, और ये भी देखना है कि हम उनके इंटेलिजेंसिया को, उनके सोचने समझने की शक्ति को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। गेट रिचर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और बच्चों में हम मैक्सिमम व्यवस्था पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, जिससे वो उस चीज को अनुभव अपने से कर सके, कैसे करा सकते हैं। अब सवाल है, इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को नियरेस्ट, अगर जाता है नियरेस्ट दुकान पे कुछ पैसे लेके छोड़ सकते हैं, ये सामान का लिस्ट लेके आप खरीद के आओगे, कितना लाए हो ये और कितना लिए हो, कितना में मिला है, ये दोनों चीजें आपको लेके घर पे आना है। कभी कभी नियरेस्ट जो नजदीक का हो, या फिर जैसा आपको कन्वीनियंस हो, दूर भेजेंगे फिर और ट्रबल ना हो, जैसा उसको देखते हुए, तो आप उसका एक एक्सपीरियंस पढ़ाई के साथ साथ शायद वहां भी हम उसको डेवलप करा सकते हैं, जो आगे उसको काम आएगा। क्योंकि ये जो आपका है वह यूनिक कंट्रीब्यूशन टू आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और ये कभी कभी हम सामाजिक परिवेश में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिनसे भी उनको रूबरू करवाएं, उसके कारण कि जिससे कि वो अपने आप को आगे ले जा सकने में सहायक बना सके। Elements of guidance. It focuses attention on the individual and not the problems. Yes. हमें जो यहाँ गाइडेंस का जो एलिमेंट्स, जो प्रकार है, उसमें ये है कि हम उसके प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसके इंडिविजुअल के अटेंशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। It leads to discovery of ability of an individual. हमें उसके किसी भी पर्सन्स के एबिलिटीज को खोजना होगा, डिसेबिलिटीज को खोजना होगा, वो ये देखना होगा कि हम ये इनका जो है क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से है। हम मानते हैं कि किसी ने कोई प्रॉब्लम बताया और हम उस प्रॉब्लम को के जड़ को किस तरह से ले जा सकते हैं, उसमें कैसे जाके उनको उसका रूट आउट, जड़ से रूट आउट कैसे कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा एज ए गाइड लाइनर, गाइडेंस के तौर पे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि कोई बच्चा है जो मानसिक तौर पे कहता है कि हम सर नहीं पढ़ेंगे, या फिर क्लास में डिस्टर्ब करता है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसका, एक सैफ नाम का बच्चा है, हॉस्टल में रहता है, शायद वो सबसे बदमाश, आई मीन टू से कहने का कि नोटोरियस और थोड़ा सा कम करने वाला बच्चा है, लेकिन शायद वो कल आया है, कल की बात है, कल वो आया है, अपना बाल पूरा कटा के आया है, जो बाल के लिए विख्यात था, वो बाल कटा के, और सामने हमें रात में हमें बताया कि सर मैंने अपना बाल कटा लिया और कल से मैं पढ़ूंगा भी, वो मुझसे प्रॉमिस कल किया। तो सवाल एक इंडिविजुअल बच्चे का है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप लोगों के भी गाइडलाइंस में आते होंगे, आप लोग भी उन्हें बताते होइएगा और वो शायद अमल करते भी होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि आपको इग्नोर भी करते होंगे, बच्चे टीचर को इग्नोर भी कर देते हैं कभी कभी। आजकल एक नया वर्ड निकला है, वो क्या कहते हैं उसको, डिलीट मारो।
बच्चे अक्सर कहते सुने हम सुनते हैं अक्सर, उसमें कहता है बच्चा सर कह रहा है हटाओ डिलीट मारो, सुने हैं। तो ये जो कंडीशन है इसमें गाइड्स की आवश्यकता होगी। देखिए पहली नंबर तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर बता दूं कि इसमें से सब के सब एक ही साथ रोज दिन काम करते हैं, रोज दिन आपस में तू मैं करते हैं और रोज दिन फिर साथ में रहते हैं, ऐसा होता रहता है। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, फिर भी एक तरह से एक ये याद कराने की चीज है कि हम लोग एज ए गाइड होंगे तो बच्चों के प्रति हम क्या क्या कर सकते हैं, सामाजिक दायित्व के प्रति क्या क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ याद कराने की है। मैं मानता हूं कि इसमें सब अपने अपने एक्सपीरियंस, क्षेत्र के एक्सपीरियंस लोग हैं। अब यहाँ पे है ये गाइडेंस इसका है कि इट इज बेस्ड अपॉन द एसेट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक चीज और, अगर हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल है, उसके एसेट्स क्या है, वो क्या सब इफोर्ड कर सकता है। मान लीजिए किसी को हमें गाना सिखलाना हो, उसका मन भी है कि हम गाना सीखेंगे, ना कुछ गाए तो गाए जनगणमन जरूर सीखें, लेकिन उसके पास हारमोनियम नहीं, एसेट्स नहीं है, तो गाइड जो कर रहे होते हैं अरे चलो हम तुमको सिखला भी देते हैं, लेकिन वो नहीं सिखला पाएंगे जब तक कि उनको प्रोवाइड ना कराया जाए। तो कहने का सेंस कि किसी इंडिविजुअल को सिखलाने की बात तब तक सार्थक नहीं होगी जब जो उसके असेसमेंट है, जो उसमें एसेट्स है या जो लिमिटेशंस है उसको भी हम कवर अप करके ना चलें। क्योंकि सिर्फ ये बात है गाइड करने की, तो गाइड पूरी कल्पना से नहीं होगी। गाइड के लिए केवल पूरी कल्पना हम गाइड मन में करते रहे कि उनको गाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे नहीं होता है। सीखने की प्रवृत्ति भी होनी होगी बच्चे में, अगर वो नहीं है तो उसको इंडिविजुअली हम लाने की कोशिश नहीं करें। हम मानते हैं कि उसमें हम सक्सेस ना होंगे, मानता हूं सक्सेस ना हो, लेकिन कुछ हद तक तो हो ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ना हो पाएंगे। अगर ऐसा होता तो अर्जुन धनुष रख दिया, लड़ाई नहीं करता, लेकिन जब उसे जानकारी मिली कि हमको कैसे किनके विरुद्ध लड़ना है तो लड़ा, और जो गलत थे वो मारे गए। इसलिए आप लोग उसी क्षेत्र में है, बहुत सारे अभिमन्यु पैदा करने हैं, आपको सिखलाइए, गाइड कीजिए, यहाँ भी समाज में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। सेल्फ इट लीड्स टू फैक्टर एक और है कि इट लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन। अब ये चीज जो गाइडेंस है ये अच्छा कब होगा जब उनका सेल्फ डेवलपमेंट भी हो और डायरेक्शन में उनका सही हो। सेल्फ डायरेक्शन मतलब कि आप अक्सर कहते हुए सुने होइएगा किसी बड़े लोगों से कि आपका गोल अगर सुनिश्चित है और आप दिशा की तरफ चल रहे हो गया तो शायद लक्ष्य पाना मुमकिन ही है, नामुमकिन नहीं है। या तो गोल फिक्स हो या फिर उस तरफ आपके सही डायरेक्शन में आपका निशाना भी लग रहा हो, तब एक बार में, दो बार, तीसरी चौथी बार में तो विजय पाना तय है। तो ये चीज हम जानते हैं कि ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन बच्चों के बीच ये भावना होगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे को क्या, एक बार मैंने देखा एक बच्चे को कि वो लगभग उम्र काफी कम, तो उससे किसी आंगनबाड़ी केंद्र में कहीं पे, तो वहां पे बच्चा वो जैसे पेंसिल लेकर के बोर्ड पे लिख रहे होती थी मैडम, वो बच्चा वहां भी लिखने की कोशिश कर रहा था, 2 साल से कम उम्र का भी बच्चा। तो कहने का सेंस है कि वो उसका प्रयास था उसकी तरफ उनको देख के। तो गाइड्स का मतलब होता है वो उसको उसके बाद जब अटेंड करता है एप्रोप्रिएट एज, तो वो उसके बाद लिख सकता है, देख सकता है, वो उनके गाइडलाइंस के आगे अच्छे से बढ़ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो कैरियर गाइडेंस की जहां तक बात आती है तो उसमें इंडिविजुअल के प्लान उनका करना होगा वाइजली, दे हैव टू प्लान टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उन्हें अपना प्लान भी करना होगा। जैसे क्लास 10 के एक बच्चे ने पूछा कि सर हम क्लास 10 के बाद अपने कैरियर में क्या करें,
क्लास 10 में के बाद कैरियर में हम क्या करें, तो उसके लिए ऑप्शंस हम लोग के पास लिमिटेड ऑप्शंस है। क्लास 10 के बाद बच्चा चाहे कम पढ़े लिखे कम पैसे वाले लोगों के लिए तो वो पॉलिटेक्निक करे गवर्नमेंट से, 3 साल पॉलिटेक्निक सरकार के पैसा से पढ़े और फिर इंजीनियरिंग क्वालिफाई वहीं से करे उसी पैसा से, और 3 साल उसका पढ़े, 6 साल में उसकी इंजीनियरिंग हो जाएगी। ये क्लास 10 की बात है, 11-12 की बात नहीं है। और क्लास 10 में पॉलिटेक्निक किया ही जा सकता है, बच्चे जो अच्छे हैं वो कम से कम अपने आप 10-15-20 कर जाएंगे निश्चित तौर पे। एक ये है। दूसरा था उनका ये डाक विभाग में, उसमें भी अपनी कैरियर की शुरुआत पहले बढ़ाई, देखा जाता था बड़े उनको कम पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, अब वो भी अच्छे हो चुके हैं। डाक डिपार्टमेंट, ये पोस्टल डिपार्टमेंट। कहने का सेंस है कि सवाल ये नहीं है कि आप वहां जाए, ऐसे बच्चे समाज में बहुत है जो उतने लायक नहीं है, उससे अधिक लायक नहीं है, तो जो जहां सेट हो सकता है गाइडेंस, आप 50 लोगों के बीच अगर आप गाइडेंस करते हैं तो 50 के बीच वो कॉमन एजेंडा फुलफिल नहीं होता। सबके अपने अपने इंडिविजुअल मेंटल हाइट्स एबिलिटीज होते हैं जो एक्सेप्ट करेंगे, सब 50 तो ना करेंगे, तो फिर आप 10 उसमें से आप वो करेंगे, 40 ना करेंगे, 40 को किसी तीसरे विचार पे आप तय करने के लिए वो तीसरे विचार को एक्सेप्ट करेंगे। एक ही चीज सबों पे हम एक दिन थोप दे, संभव नहीं है। तो इसके लिए अब हमने एक विचार कहा कि हम 10th में भी उनके कैरियर को हवा दे सकते हैं, उनके मन में ये विचार डाल सकते हैं कि आप भविष्य में चाहो तो इस लाइन में भी अच्छा कर सकते हो। तो चूंकि हम लोग इस कैरियर गाइडेंस की बात कर रहे हैं 11-12 के बाद, तो आप सब करते ही हैं, 10 में भी कर सकते हैं, 11-12 में भी कर सकते हैं। मतलब एज ए गाइड आप अपने कैरियर को भी ऊंचा कर सकते हैं टीचर होने के बावजूद, या बच्चे को भी करवा सकते हैं। कहने का मकसद, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि उसमें ये फीलिंग्स डालना कि आप इंडिविजुअल को कि आप अच्छा करो, आप आगे बढ़ो, इस क्षेत्र में आपकी असीम संभावना है आगे अच्छा करने की, जो आप करते रहो। अब ये जरूरत क्यों पड़ी है, टॉपिक यही था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1996 has emphasized the need for guidance and counseling services to become integral component of program of any educational institution। ये 1986 की पॉलिसी बनी हुई है जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसने एम्फसाइज किया है, इसने जोर देके कहा है कि कैरियर और गाइडेंस काउंसलिंग के क्षेत्र में यहाँ पे सर्विसेज टू बिकम इंटीग्रल कंपोनेंट, ये होना चाहिए था। स्कूल में कितने दिन बात हुई है जो उसमें कि स्कूल में काउंसलर की जरूरत है, प्रिंसिपल सर से बात हुई है, डायरेक्टर सर से भी बात हुई कि यहाँ एक काउंसलर चाहिए जो बच्चे को काउंसल कर सके। वो क्यों नहीं पढ़ते उसके बारे में, आखिर उसकी जरूरत तो कहीं ना कहीं महसूस हो रही होगी, किसी न किसी जगह पे महसूस हो रही है। टीचर स्ट्रेस में, बहुत सारे टीचर हैं जो स्ट्रेस में बहुत सारा समय अपना नहीं दे पाते बच्चों के बीच में, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है, इतना सारा पीरियड आता है, वो टाइम ही नहीं दे पाते। तो एक इंडिविजुअल अगर काउंसलर है तो वहां पे ये अच्छा होगा कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा उनके द्वारा, जिनके पास। अब काउंसलर होना कैसा चाहिए, तो वो गुड एजुकेटर होना चाहिए, उसके अपने सही रहने का मापदंड होना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर वाला होना चाहिए, वो एक अच्छा गाइडलाइनर हो सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग services enable students to benefit in academic and vocational pursuits। गाइडेंस और काउंसलिंग एजुकेशन के सिस्टम से लेके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से लेके उनके बोलने की एक्टिविटीज को भी बढ़ाता है। यदि उसका रोज दिन 10 बच्चे का, 20 बच्चे का, 25 बच्चे का अगर काउंसलर से कन्फ्रंटेशन होता हो, सामना होता हो, तो वो बच्चा उसके बारे में जानेगा, वो बताएगा कि ऐसा, क्योंकि टीचर के रूप में ये होना लगभग बहुत सारा संभव नहीं है, बहुत सारा समय नहीं मिल पाता उनको।
लेकिन अगर काउंसलर होता है तो वहां पे समय आपको उनको वही समय होगा जहां पर कि वो बच्चे को बताएंगे। राजेश सर, क्या ये सही है? काउंसलर का होना सही है? अब है या नहीं? हाँ सही है। अच्छा है। कैसे? ऐसे कि अगर बच्चों के ऑल अराउंड डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे, आपने बहुत सारा एक सुंदर बात में रखे कि बच्चे 10 के बाद क्या करना चाहिए और क्या किस तरह का गाइडेंस होना चाहिए, +2 के बाद क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जो है वह अगर हम 10 क्लास में उसको अगर हम आगे क्या होने वाला है, 12 के बाद क्या करना चाहिए, 10 के बाद क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर हम क्लास में पढ़ाते हुए दरम्यान में कुछ वाक्य निकले और इसको अगर टीचिंग के दरम्यान में ही कुछ गाइड कर दिया जाए तो बच्चे भटकने से बच जाए। ओके, थैंक यू। ये हमारी मानना है। थैंक यू सर। एक्चुअल में ये आइडिया है, ये सही आइडिया है और डेवलप्ड कंट्री हमारा तो है नहीं। अगर ये थोड़ा सा और अचीव करे तो शायद ये व्यवस्था अपने ही देश में स्कूल्स में होना शुरू हो जाए, जापान यूरोप की तरह, जो यहाँ भी नहीं है। फिर हम लोग उसका इमेजिनेशन करें कि ऐसा हो सकता है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें टाटा जो उनकी तरफ से करियर काउंसलिंग होता है। दिल्ली की जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे टाटा की तरफ से करियर काउंसलिंग बच्चों का होता है। बड़ा सा वो लोग क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं उनके इंटरेस्ट पे बेस, है ना, जो उनके इंटरेस्ट को भी शो करता है। पूरा असेसमेंट करके और वेबसाइट के थ्रू पूरा डिजिटली वो बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, रिजल्ट देते हैं और उनको कहाँ एजुकेशन लेना चाहिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो सब की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स में शुरू हो चुका है। तो एक और क्वेश्चन सर, क्या हम इस आधार पे कुछ थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा, भले ही वो उतने बड़े बैनर पे नहीं होगा, उतने बड़े वेबसाइट पे नहीं होगा, लेकिन स्कूल में हम ये जो अपना यहाँ पे ये है सेमिनार हॉल है, क्या हम ऐसा कोई व्यवस्था अपने खास करके 9-10 के बच्चों के लिए, 8 के बच्चों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। पहला तो यह लाइब्रेरी में जो है कुछ ऐसे बुक्स को हम लोग ला सकते हैं जो मेनली करियर गाइडेंस पे ही बेस्ड होती है, इसके थ्रू होता है। दूसरा, हम लोग असेंबली के टाइम में भी अगर ऐसे पर्सनैलिटीज या नए नए सेक्शन जब खुलते हैं, करेंट अफेयर में भी हम लोग पढ़ते हैं, उन सब के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। डेली वाइज क्लास के दौरान भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बता सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ करियर काउंसलिंग। हो सकता है बच्चे के अंदर टैलेंट हो, उसको लगे कि ये तो फालतू चीज़ है, हम कहते हैं कि बापू ये अलग है, ये अलग है, तब फिर वो उसको वर्क करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो ड्यूरिंग द क्लास भी कर सकते हैं, स्कूल का हिस्सा भी हो सकता है, लाइब्रेरी इसको बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। अच्छा है। ओके, थैंक यू सर, वेरी गुड, थैंक यू। मिस, my point is not that. My point was to get your ideas. What can be done? What can be done here? Though it is on a small scale, but what can be a start in this school by ourselves with the group of the teachers? So we can do that one also. It's very good idea, sir. It can be done. Okay, thank you. So teachers, nursing will be called upon to make the practical decision for helping students through their problems. यही आपने जो कहा कि बच्चों से उसके बारे में, उनके इंडिविजुअल के बारे में जाना जाए और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए पर्टिकुलरली। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क दिखने में लगता तो जरूर है शुरू में, लेकिन एक ये पार्ट बन जाएगा और बच्चे जिस क्षेत्र में होंगे उनमें उनका कहीं ना कहीं इस काउंसलिंग का प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक बच्चे ने मुझे स्पष्ट बोला है कि सर मुझे साइंस 12 क्लास के लेवल में नहीं पढ़नी है, मुझे मैथ नहीं पढ़नी है, मैं सिर्फ इसमें पास होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब टीचर चाहे जितना भी माथा पीट ले, उस बच्चे का उस पेपर में मार्क्स नहीं आएगा क्योंकि वो नहीं चाहता। तो मैंने उसे कहा कि क्या तुम्हें करना क्या है,
तो सर मुझे आगे लॉ की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2, 3, 4, 5 बच्चों का अलग अलग एक विचार था। तो मैंने कहा कि तो एक बार बताओ एसएसटी में तेरे मार्क्स का क्या सवाल है? मानते हैं साइंस और मैथ्स तुमको कम पढ़ना है जिसमें कि तुम पास होना चाहते हो, तो फिर वो 3 पेपर जो बच जाते हैं रेस्ट इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, उसमें तो 100 में 98-99% नंबर होने चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया है सर, हाँ ये बात तो है होना चाहिए, तो फिर होता क्यों नहीं? हम इस गाइडेंस का प्रभाव तब देखेंगे जब बच्चे किसी जो सब में है अच्छी बात है, जो वैसे ब्रेन कमी है जो 4-5% होते हैं वैसे जो बिल्कुल सब में अच्छे ही होते हैं, लेकिन सब में सब अच्छे नहीं होंगे, तो उसमें उसने कहा कि सर हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमको इस क्षेत्र में जाना है। हमें लगभग 5-7-8 बच्चों से बात हुई हमारी इसी बीच में 10-15-20 दिनों के बीच, तो उन्होंने कहा है कि सर मुझे उसमें नंबर कम भी आए तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे 11 नोट नहीं लेना, किसी को एसएसटी नहीं पढ़नी है, किसी को साइंस नहीं पढ़नी। तो फिर उनके इंडिविजुअल चॉइस के आधार पे तो मैंने उन्हें क्वेश्चन कहा कि ठीक है नहीं पढ़नी है, इसमें नंबर कम आए ज्यादा आए कोई मायने नहीं रखता, तुम 50% से एबव भी लाओ चलेगा, लेकिन दूसरे जिसमें तुम्हें पढ़ने है आगे कैरियर संवारने है उसमें तो 98-90 से एबव चाहिए। उसको उन्होंने एक्सेप्ट जरूर किया है कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं करेंगे। तो खास करके सिनेरियो चेंज होते हैं और हम बड़े सरों से भी बात होती रहती है हमारी, तो उसमें भी उन लोगों का भी विचार रहा है, और जो सीनियर्स है उन लोग सारे उन सब से भी विचार सब लोगों से हुआ था, उसमें हमें भी लगता है कि हम लोग काफ़ी काउंसलिंग भी सही, एजुकेशनल अरेंजमेंट ही सही, हम लोग ठीक हैं, स्कूल में अच्छे चल रहे होते हैं, थोड़ा सा उसमें और इंडिविजुअली थोड़ा सा और जरूरत है, अदरवाइज हम लोग ठीक ही चल रहे हैं। Nursing teachers have the responsibility of training their students to become efficient nurses by enabling them to acquire the necessary knowledge, attitude, and skill, besides assisting them in their personality development. Nursing teachers, अब ऐसे भी स्कूल में हर एक स्कूल में जो अपॉइंटमेंट है वो उसका कंपाउंडर टाइप डॉक्टर, एडमिट से डॉक्टर होना चाहिए, तो और नर्स उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ भी है, हाँ कोई भी ऐसा इमीडिएट कुछ इफेक्ट होता है तो आते हैं, मरीज ही आते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि नर्सिंग टीचर्स क्योंकि प्राइमरी फर्स्ट एड के लिए वो काफी है, इसलिए सही भी है। नर्सिंग टीचर्स हैव द रिस्पांसिबिलिटी, अब यहाँ पे जो दे रखा है कि ये ट्रेनिंग में दिया जाना चाहिए नर्सिंग टीचर्स के द्वारा टू देयर स्टूडेंट्स, उनके बच्चों के बीच में, कि वो अपने भी जानकारी रखें, उनके पास नर्सिंग के एफिशिएंट नॉलेज हो जाए, उस लाइक जिस लाइक वो एक्सेप्ट कर सकते हो, प्राइमरी फर्स्ट एड के नॉलेज उनके पास आ जाए, और जो कि असिस्ट कर सके आगे बढ़ के अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पर, मतलब वो अपने आप को उसमें भी स्किल्ड समझे, उतना नॉलेज उनके पास आ जाए, इसकी भी जानकारी उन्हें चाहिए होता है, जो दिया जाना चाहिए गाइड के तौर पे। Unresolved problems may affect not only the academic performance of the students but also their personality development. अब यहाँ एक पॉइंट दिया है अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। आज एक अतिरिक्त सवाल है जो एक बच्चे ने पूछा था एक टीचर से आज कि सर आज तो जानते हैं कि बैक्टीरिया जो दूध में मिलता है वो कौन होता है, तो टीचर ने बताया भी होगा ऐसा नहीं है, और उसके बाद उसने पूछा कि सर बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कैसे होता होगा, पहले कैसे होता होगा और वो बढ़ता कैसे होगा, और दही बनने के बाद उसकी सिचुएशन और ऐसे कैसे हो जाती है। और अभी दही जमाने के लिए ऊपर से हम लोग दही देते हैं जिसमें बैक्टीरिया भी होगा, बच्चे का कहना था उसमें बैक्टीरिया भी सर होगा उस दही में, बिल्कुल, तो सर वो बैक्टीरिया वाली दही में पहली बार जब दही जमाया होगा तो कैसे होगा,
और टीचर ने उसका जवाब ये नहीं दिया है, हमारे पास वो क्वेश्चन आया है, जाते वक्त बच्चे ने कहा है इसका जवाब कर ढूंढ के देना। तो ऐसा ही सवाल है, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स है जो बचा रह गया है। हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अपना आंसर मुझे कर दें कि आने के समय में परसों रविवार तक सोच करके may impact not only the academic performance। मानते हैं कि उससे डायरेक्ट उसका कोई प्रभाव बच्चे का नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसके मन में आए कि इस टीचर से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उस दिन इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर मुझे ना दिया था, तो दूसरा मैं इनसे क्यों पूछूं। तो एक इस तरह का एक अगर फीलिंग्स उसके मन में आता है तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, तो उसको आंसर को दिया जाना जरूरी है। जो मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, ये इट इज ए स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ गाइडेंस एंड बेसिकली एन एनेबलिंग प्रोसेस designed to help an individual come to terms with his life and grow to greater maturity through learning to take responsibility and to make decision for ourselves. Overall इन जो पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, ओवरऑल इनका कहना यह हुआ कि आप यदि सेल्फ डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी अगर होती है जिसमें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हो और मैच्योरिटी लाइफ में हम कैसे अटेन करें, लाइफ को आगे बढ़ाने में से लेके और मैच्योर लाइफ अटेन करने तक के सिचुएशन में ये जो स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ गाइडेंस का है ये बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जाना चाहिए बच्चों से लेके सामाजिक अरेंजमेंट तक में। काउंसलिंग इज द हेल्पिंग रिलेशनशिप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप काउंसलिंग में ये नहीं कर सकते कि हम आपको एडवाइस, हम आपको आदेश दे रहे थे, एडवाइस भी नहीं है। अगर उसको एक मायने में कहा जाए हाँ एडवाइस कहा जा सकता है, लेकिन आप उसमें थोप नहीं सकते। किसी के इंडिविजुअल के नीड्स को जानते हुए, उसकी कैपेबिलिटी को जानते हुए, उसके एसेट्स को जानते हुए आप उसको केवल करने के लिए अपने आधार पे करने के लिए केवल वे लीड, यू कैन लीड द वे ओनली। काउंसलिंग इज द हेल्पिंग रिलेशनशिप। ये एक दूसरे से अगर कहा जाए तो ये हेल्पिंग रिलेशनशिप है। आई मीन टू से आप आज आपको हम हेल्प कर रहे हैं अपने अच्छे डिसीजन के द्वारा, कल आप मुझे करें अपने अच्छे डिसीजन के द्वारा। तो ये जो एक हेल्पिंग रिलेशनशिप है ये एस्टेब्लिश करना होता है। अगर आप बेस्ट काउंसलर बनना चाहते हो तो एक हेल्पिंग रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करें। जैसा कि यहां दिया हुआ है, काउंसलिंग इज नॉट ए गिविंग इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन मे बी प्रेजेंट। काउंसलिंग इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन, केवल ये जानकारी देने की चीज नहीं है जो कि अभी प्रेजेंट में है, वो इंफॉर्मेशन देना ही केवल काउंसलिंग नहीं होता। काउंसलिंग इज नॉट गिविंग एन एडवाइस, वो आपके विचार भी नहीं है। काउंसलिंग इज नॉट द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एटीट्यूड, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र में दूसरे को समेट रहे हैं, अपना प्रभाव वहां पे दिखा रहे होते हैं, ये भी नहीं है। बिलीफ एंड बिहेवियर्स बाय परसुएडिंग, एडमोनाइजिंग, थ्रेटनिंग और कंपेलिंग विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। आपको उसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल वायलेंस नहीं करना है। ये काउंसलिंग is not the selection and assignment of individual to job। और ये ऐसा भी नहीं है कि अब जैसा मैंने कहा था कि 10 के बच्चे को ऐसा मैंने कहा करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो जो मैंने कहा कि ऐसा करना है उन्हें आगे बढ़ के जिंदगी में, नहीं। एक ये रास्ता है जहां पर आप आगे जा सकते हो, बस सिर्फ इतना ही। हम उस पर अपने विचारों को थोप नहीं सकते, उनको वो काम करने के लिए कंपल्सन नहीं ला सकते उसमें कि आपको करना पड़ेगा। काउंसलिंग इज नॉट इंटरवीन
और काउंसलिंग क्या है? इंटरव्यू भी नहीं है कि आप आए हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपके सर्टिफिकेट्स ये हैं, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है, आपको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। वो काउंसलिंग जो है वो नहीं, इंटरव्यू भी नहीं है। तो क्या है? बेनिफिट्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें गाइडेंस और काउंसलिंग का बेनिफिट्स क्या होगा, और वो बेनिफिट्स इंडिविजुअल के केस में क्या होगा। हो सकता है ना कि हम कोई चीज कह रहे हो तो कॉमन कह रहे होते हैं, कॉमन को कितना बेनिफिट जा रहा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ बेनिफिशियरी जो हो रहा है वो इंडिविजुअल हो रहा होता है, तो उस इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज को क्या सब मिल सकता है हमारे द्वारा, या किसी जो गाइडलाइनर होंगे उनके द्वारा। एकेडमिक ग्रोथ, वोकेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब एकेडमिक ग्रोथ तो एकेडमिक जो सिचुएशन जिनके पास जो एजुकेशन होल्डर होंगे उन्हीं से मिलेगा। वोकेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, वो कम पढ़े लिखे लोग भी एहसास करा सकते हैं। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये उनका अपना बेनिफिट है। जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स है उनका बेनिफिट है ये कि वो गाइडेंस में, किसी गाइड के गाइडेंस में क्या सब बेनिफिट पा सकते हैं। एकेडमिक ग्रोथ उनका हो सकता है, वोकेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ उनका हो सकता है, या फिर पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट ये भी हो सकता है। टीचर हैंडलिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, जो हैंडल करते हैं, नॉट ओनली शुड नो द टोटल, वो जो उनके गाइडेंस में है केवल लोगों को इंडिविजुअली जानना ही चाहिए। नो द सब्जेक्ट्स, उनके सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानिए, उनके इंटरेस्ट के बारे में भी जानिए, बट ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड द नीड, उनकी जरूरत के बारे में भी जानिए, उनके एबिलिटीज के बारे में जानिए। स्ट्रगल टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द मीन्स से इतना व्यापक मीनिंग है इसका, इतना व्यापकता से इस बात को रखा गया है कि आपको काउंसलर होने के नाते अगर आप बनते हैं तो इतनी सारी क्षमताएं आकलन करने के बाद आप उनको उनके आगे के बारे में बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता नहीं सकते, गाइड कर सकते हैं। टीचर हैंडलिंग गाइडेंस उनमें क्या सब है, ये सब की सब एबिलिटीज है, उनके इंटरेस्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स है। स्ट्रगल टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सब के सब गुड गाइड्स को भी ये ध्यान में रखना होगा कि हम इस परिस्थिति में कैसे अपने स्टूडेंट्स को आगे ले जा सकते हैं। इन सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए ये सारे के सारे डेवलपमेंट होने चाहिए। उसके बाद और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है सोशल बेनिफिट्स। तो सोशल बेनिफिट्स includes proper utilization of human resources to provide good nursing care to needy clients, attaining good citizenship by acquiring required intelligence, integrity, honesty, right attitude, social values, habits, social responsibility, and have a better family relationship by better adjustment, by building better relationship within the family and friends. तो ये जो सोशल बेनिफिट जो है वो सोशल बेनिफिट ये है कि यदि हम बच्चों को उस प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ
तो उनके कैरियर गाइडेंस की तरफ या फिर उनके गाइडेंस की तरफ हम जब चलते हैं तो उसमें है कि ये सारी चीजें व्यापकता से उसमें जुड़ी हुई है। इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके हमें उन्हें गाइड करना है, जिसमें जितने इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट है सिटीजनशिप में अच्छे सिटीजन होने के लिए उनको, वो सारे के सारे इंटेग्रिटी की भावना उनमें होनी चाहिए, जुड़े होने का, एकता का वो होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, राइट एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड सही होने चाहिए। तो इन सारे सोशल वैल्यूज की जानकारी उनको मिलना चाहिए, उनके हैबिट्स सही होने चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैव अ बेटर फैमिली रिलेशनशिप उनका होना चाहिए, बाय बेटर एडजस्टमेंट ऑफ बेटर रिलेशनशिप विद द फैमिली। ये सारे के सारे सोशल बेनिफिट्स हम मुहैया करा सकते हैं अपने आइडियाज के द्वारा, और जो स्टूडेंट्स हो वो उससे बेनिफिट उठाए, उससे आगे बढ़े। तो इसमें और कोई पॉइंट्स यदि जोड़ना चाह रहे हो तो कोई सर यदि इसमें और कुछ पॉइंट जोड़ना चाह रहे हो तो जोड़ सकते हैं मैडम। अगर आप इनके अलावे इसको छोड़ के इसके अलावा आप अपने आइडियाज से दे सकते हैं, मैं बोर्ड के लिखे हुए आइडियाज के आधार पे नहीं। हम एज ए काउंसलर सोशल बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं
में लाया जाएगा। इतने समय के बाद हमें एक बाद बाकी सब विचार मिलते रहते हैं, आते रहते हैं विचार, आते रहते हैं लोगों के द्वारा, लेकिन इसमें ये विचार भी आया जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें फोकस करने का मेन स्टूडेंट्स पे फोकस करने का 4-5 पॉइंट जो दे रखा है, उसमें पहला पॉइंट है उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों का इस विद्या मंदिर में रहने का मेन उद्देश्य भी है। सारे उद्देश्य इसके बाद के उद्देश्य है, मेन उद्देश्य वही है जिसमें कि हम उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से सोचे, अच्छे से बात करें और अच्छा करें। दूसरा उनका सोशल इम्प्रूवमेंट है, अपलिफ्टमेंट है, कैसे वो सोशली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, सोसाइटी में अपने आप को। जैसे एक बच्चा है वो बाहर में जाता है, सेंट पॉल स्कूल्स के नाम से उसके 3-4 लोग इनवाइट करते हैं, अच्छा तू आ गए हो, आ जाओ आ जाओ, इस लाइन पे 5 लाइन बोलना है, इस पॉइंट पे जो तुम्हें अभी बोलना है। यह सच्ची घटना है और वो बच्चा नहीं बोल पाता है और फिर वहां पे क्रिटिसिज्म होता है स्कूल का। हम नहीं कहते कि सारे बच्चे बोल पाएंगे, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको ये सब बोलने आना ही चाहिए। इसके लिए जो हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि आया अभी विचार आया था, उसमें वोकेशनल जो अपलिफ्टमेंट है बच्चों का, उनको इम्प्रूवमेंट है बच्चों का, उसके लिए आया तो इसमें विचार किया जाएगा, आप लोगों से भी राय लिया जाएगा कि सर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए जिसमें कि वो अच्छा कर सके भविष्य में। मोरल वैल्यूज, रोज दिन बच्चा ओथ लेता है, आई टेक ओथ, आई विल बी द वेरी सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, और ठीक आने के बाद उस ओथ के बाद सेम गलती करता है रोज दिन। हर बच्चा नहीं करता लेकिन करता है। हम इस चीज को रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उनको इमोशनली कैसे हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप जो ओथ लेते हो जिसके नाम से, तो उस ओथ को हम पालन करें। उस ओथ में कम से कम ना 100% तो 70%, 60% भी तो चले। मानते हैं कि आप कहिए कि सर ना चलेगा 100%, कोई भी नहीं चलता, कोई बात नहीं है, 60-70 भी तो चले कम से कम। और एक है हेल्थ एंड लीजर एक्टिविटी। हेल्थ के बारे में आप सब अच्छी तरह से देखते होंगे, जैसा कि कहा जाता है कि गुड माइंड यूज्ड टू बी इन गुड हेल्थ। हेल्थ ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा क्या? सोशल बिहेवियर उसके अच्छे कैसे होंगे, किसी के काम कैसे आएगा? क्लास 10 का एक सबसे हेल्दी बच्चा है, वो आपको 4 दिन पहले बताया कि सर आपको आज कुछ ना कहिए, मैं थोड़ा सोऊंगा, पूरे अपने 4 दिन करना चाहिए, इफेक्टिवली करना चाहिए, जिसमें हम बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट की एनकरेजमेंट इंडिविजुअली और कॉमनली दोनों। मास भी वर्क होते हैं ना, यहाँ इंडिविजुअल बच्चे के वर्क होते हैं और मास वर्क भी होते हैं, तो दोनों की तरफ हमको ले जाके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनको एक अच्छे गाइड के तौर पे नेतृत्व करें। तो हम कर सकते हैं, ये वो बड़े बच्चे के लिए ही केवल ये नहीं है, छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व है, छोटे बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। उनके कैरियर नहीं होंगे लेकिन उनके लिवलीहुड के में तो सहायक होंगे ही लोग, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग सहायक होंगे ही, अपने काम कैसे करो ना करो इसमें। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग सब असहज महसूस कर रहे होंगे, जल्दी हो जाए, लेकिन अब टाइम ही होने ही वाला है। तो इस इंडिविजुअल डिफर इन नेचर, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि प्रत्येक बच्चा आपका उसी ढंग का नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल डिफर करेगा नेचर में, वो अलग अलग भी हो सकता है, उनके नेचर अलग अलग होंगे ही, तो एबिलिटीज उनकी, उनके इंटरेस्ट वो सब अलग अलग होंगे। टू हेल्प द पर्सन, आपको उन्हें हेल्प करना है। फॉर्मुलेट एंड एक्सेप्ट स्टिमुलेटिंग worthwhile and attainable goal of the behavior, उनको ये बताना कि आप मूल्यवान जो गोल आपके जिंदगी में हो सकता है, उस गोल को आप कैसे अटेन करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, जो आपका लक्ष्य है वो कीमती है, उसको कैसे अचीव करेंगे, आप उसमें सहायक बने। Apply these objectives in the conduct of his behavior,
और जो बोले वो आचरण में भी आए। मूल मंत्र पूरा का यही है, केवल बोलना ही काफी नहीं होता, वो अंदर और बाहर एक तरह से आए तो ज्यादा बेटर होता है। वैसे हम किसी को कंपल्स नहीं कर सकते, हम किसी को कह नहीं रहे आप कीजिए, आपका जो करे वो कीजिए, लेकिन मेरी तरफ से रहेगा कि अच्छा ऐसा करें तो अच्छा होगा। एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो चीज ना रहे, बिल्कुल स्पष्ट रहे अपने विचारों से किसी के सामने। विचार आपके वही रहे जो हमारे सामने रहे तो दूसरे के सामने भी रहे, उनके सामने उनका विचार और उनके सामने उनका विचार नहीं, एक विचार सबों के सामने। शायद इसी आधार पे हम सब चीज को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं और एक परिवार की तरह मानते हैं कि थोड़ा उत्थान पतन होता रहता है, विचारों में मतभेद होते रहते हैं, वैचारिक मतभेद होगा, नहीं होने से गड़बड़, होना चाहिए, होना भी चाहिए, तब तो आपकी कमियां आपके पास तक आएंगी। कमियों को सुनने का क्षमता होना ही चाहिए। मैं भी थोड़ी कोशिश करूंगा, अपनी कमी को मैं तो डेली सुनता हूँ, लेकिन सुनूंगा और सुनूंगा। सो थैंक यू स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल ऑथोरिटीज who have provided me this opportunity to say something. I can't say everything on record, but though I was not feeling well, because it has been done where I was unwell, still I am not well. That's why anyway, mistakes maybe you have listened me at least. Thank you for this. Thank you, sir, for your excellent presentation and so many valuable information you have just shared with us. So before going to conclude this program, definitely I would like to thank to our computer teachers for their technical support and Mr. Rajkumar also for his technical support and our Rajiv ji the way for his nice or excellent presentation and all, and above all our school management, especially principals sir, whose time to time guidance, supervision and all these things enable us to make this kind of program quite successful. And all my dear teachers, my beloved teachers, my mates, so the way you have spent your precious time to listen to this program, so for that purpose, once again I would like to thank you all. So with that, I would like to conclude this program. Thank you all.